सो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड बहुत कुछ आपने सुना होगा. बट डू यू नो वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द करेक्ट रोड मैप, व्हाट आर द अदर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्वड इन वेब डेवलपमेंट? फुल स्टैक वेब डेवलपर सुना होगा, फ्रंट एंड वेब डेवलपर सुना होगा, बैक एंड सुना होगा, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? HTML क्यों यूज करते हैं, CSS क्यों यूज करते हैं? So all these things are covered in this playlist. I am going to start this playlist from very basic. So every student can learn web development. चाहे आप एक CS student हो, चाहे आप IT student हो, चाहे आप non-CS student हो, you can learn web development here, and this is the right place for you to start your web development journey. So welcome back. Hi, I am Pragati Sahu. Hey, welcome guys. So we are going to start a new series based on web development. So web development start होता है HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap and बहुत कुछ आपने सुना होगा. But do you know where to start, how to start, what is the correct roadmap, what are the other technologies involved in web development? Full stack web developer सुना होगा, front end web developer सुना होगा, back end सुना होगा, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? HTML क्यों यूज करते हैं, CSS क्यों यूज करते हैं? So all these things are covered in this playlist. I am going to start this playlist from very basic. So every student can learn web development. चाहे आप एक CS student हो, चाहे आप IT student हो, चाहे आप non-CS student हो, you can learn web development here, and this is the right place for you to start your web development journey. My name is Pragati Sahu. I am a full stack web developer, and I'm going to help you to start your web development journey from here. In this video, I am going to introduce web development and its fundamentals, what will be the roadmap, and how to learn each and every topic, and what we will learn in this playlist. So stay tuned till the end, and let's get started. Development. When we say web development, it means we have to learn about full stack web development. So web development comprises of two things, that is front end and back end. And now what they are, क्या होते हैं ये? Simple शब्दों में, सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट. वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट और वेब पेज और एन वेब एप्लीकेशन. You have heard about various websites like Flipkart, Amazon, Myntra, Google, or YouTube as well. You are learning, you are watching my video on a laptop, then you are using a website. If you're watching on mobile, then use a web application. That is a web application. Okay. So applications, web pages, all the things, all the interfaces we interact with internet, using internet, that all are considered under web development. So using web development, we can create all of them. Okay, so this is all about web development. Basically, when we say I want to make an interface, for example Flipkart की बात करें, Flipkart पे आप शॉप करते हो, you are seeing multiple products. Okay, you are seeing multiple products, then you click on that product and watch its reviews, its details, its description, color, you choose one of them, and then after selecting all those products, you add your product, your chosen product to cart or to your wish list. Okay, so this is the functionality of website we are doing. Okay, जो भी हमको अपने इंटरफेस पे दिखता है, that we are seeing on a desktop, on a mobile, on our laptops, that is a front end part. Okay, and जब हमने उस particular button पे click किया, that add my particular product to cart, then what is happening on the back end? It is asking the server to add a particular product with your name, with your account into your cart, and so that you can buy your product and make your payment. So that process is happening beyond your knowledge. You don't know what is happening, what request the server is having, what request your client is having. You don't know. That whole process comes under backend. Okay, if you are starting your journey in web development, so I will suggest you to start with front end. Okay, and most of you have did, I know most of you have did, you have learned HTML, you have learned CSS, you have learned JavaScript maybe, but आप अगर इस वीडियो में आए हो, if you are there, if you are here, it means what? That you have some doubt, you need to learn something else. So that's what I am going to provide in this playlist. So first of all, let's see the roadmap. If you haven't started, if you are confused, so where can I start, or what are the options in web development, तो मैं एक roadmap दिखाने वाली हूँ. इस roadmap को देखकर आप सीख सकते हो, आपको पता चल सकता है क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको फोकस करना है, एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजी जो आपको सीखना ही है, दैट इज मैंडेटरी.
ठीक है, हर टेक्नोलॉजी में, हर फ्रेमवर्क में वेब डेवलपमेंट एक ऐसा ही फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। Okay? जैसे कि यहाँ पर हमको HTML सीखना पड़ता है। सबसे पहले HTML, सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स, what is HTTP, what is domain name, what is hosting, what is DNS and how it works, what are browsers and how they work. इंटरनेट कैसे वर्क करता है, we all know, www, वर्ल्ड वाइड वेब, सबने पढ़ा है बचपन में। HTTP क्या होता है, इट इज अ प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये इसके बारे में आप सबको जानना है, जैसे बेसिक नॉलेज इन योर कॉलेज, आप कॉलेज में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको पढ़ाया जाता है ये सब, तो आप वहां से सीख सकते हो। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है इंटरनेट से, बिकॉज हम सब चीजें इंटरनेट पे डालने वाले हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेब पेज, वी आर गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट, सो फॉर वेबसाइट वी आर यूजिंग द इंटरनेट। सो यू हैव टू नो व्हाट इज इंटरनेट, यू हैव टू नो व्हाट इज HTTP, यू हैव टू नो व्हाट इज DNS, डोमेन नेम सर्वर। ओके, अगर आप डालते हो www.google.com या youtube.com, then that youtube.com is targeting that IP address so that you can go to youtube.com. Okay, but not on any other website. If you are moving to flipkart.com, then you are moving to flipkart.com, you are moving to Flipkart website, so that is domain name. हर वेबसाइट का एक नाम होता है, लेकिन वो नाम सर्वर पे स्टोर नाम किस फॉर्म में नहीं होता है, सर्वर पे किस फॉर्म में स्टोर होता है, IP एड्रेस के फॉर्म में। ओके, एक IP एड्रेस असाइन होती है हर वेबसाइट को, जो कि सर्वर के पास होती है। ठीक है, उस IP एड्रेस को हम देते हैं डोमेन, उस डोमेन से हम जाते हैं उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे एंड देन अ वेबसाइट ओपन। तो ये तो मेन हो गया, बेसिक हो गया। अब रोड मैप में जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है HTML। HTML में उसके बेसिक्स, बेसिक्स में क्या आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, HTML करता क्या है, HTML इज नोन टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। ओके, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है जिसमें मैं बताऊं अपने बारे में, दैट व्हाट आई एम, माय नेम इज प्रगति साहू, आई एम डूइंग दिस दिस दिस, माय स्किल्स आर दिस दिस दिस, तो ये हम करेंगे HTML की हेल्प से, in which I am adding the fields, I am adding my image, I am adding my image, I have added my name, ठीक है, I have added my skills, okay, but किस फॉर्मेट में, ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, मुझे यहाँ इमेज रखना है या नाम रखना है, नीचे स्किल्स रखना है, उसके नीचे एक्सपीरियंस रखना है, तो ये हमको बताएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज HTML। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम कोई भी रियल लाइफ में अगर जाएं, रियल लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इन वेब पेज ऑल्सो, इन वेबसाइट डेवलपमेंट ऑल्सो, HTML focuses on the structure. So it is the main fundamental of web development. So this is cannot be skipped. You have to learn HTML, and that is very basic and that is very simple. So in this playlist also we are starting from HTML only. We will learn all the fundamentals of HTML. एक एक टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, काफी वीडियोस आने वाली हैं, तो stay tuned guys, and I will suggest you to subscribe the channel so that you don't miss any update. Okay, writing semantic HTML, forms and validation, accessibility, and we will make projects also. In this playlist, in the series, we will make lots of projects. We will understand various topics using practical methods only. So यही लास्ट वीडियो जिसमें आप थ्योरी देख रहे हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज CSS। CSS में हम स्टाइलिंग डालेंगे। स्टाइलिंग कैसे, आई वांट माय टेक्स्ट, माय नेम शुड अपीयर बोल्ड, my name should appear in red color, my name should have shadow effect, my skills section should have backgrounds color, something like pink color or the brown color or anything color, my image should be round। तो ये जो क्या है, ये सब क्या है, स्टाइलिंग्स। तो स्टाइलिंग्स हम कैसे देते हैं, स्टाइलिंग्स हम देते हैं CSS से। अगर आप अपना घर बनवाते हो, सबसे पहले क्या बनता है, जब भी हमारा मकान बनता है, घर बनता है, सबसे पहले उसमें क्या डलता है, उसमें डलते हैं ईंटें, और आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो, ईंट डलती है, सीमेंट लगता है, ईंट डलती है, बजरी लगती है। ओके, ये सब चीजें हम यूज करते हैं अपने, जब भी हमारा कोई हाउस बनता है। जब ये सारी वॉल्स बन जाती हैं, छत डल जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पे होते हैं कलर। हम करते हैं कलर, वॉल्स पे कलर करते हैं, सीलिंग पे कलर करते हैं, एंड अपनी जो अगर हमने इंटीरियर डिजाइनिंग कराई है, तो पहले फर्नीचर बनता है, फिर फर्नीचर पे सनमाइका लगता है, तो इट्स अ प्रोसेस। सो सिमिलरली मेकिंग वेबसाइट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ओके, सो द सेकंड स्टेप इज CSS। CSS में हमको सबसे पहले बेसिक्स हम पढ़ेंगे, कैसे हम CSS लगाते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे लेआउट्स बनते हैं। लेआउट्स कैसे, एक लेआउट मेरा है कि मेरे को 3 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस है, मुझे उसको रो वाइज लगाना है, और दूसरा लेआउट है कि उसको कॉलम वाइज लगाना है। तो ये हम किससे करते हैं, CSS से, कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शंस को हम लेआउट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ CSS। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जब हमारा घर बनता है उसके बाद हम क्या करते हैं,
हम उसमें खाना बनाते हैं, हम उसमें बाकी काम करते हैं, अपना ऑफिस का वर्क हो गया, अपना खेलना कूदना हो गया, बच्चे खेलते हैं, मम्मियाँ काम करती हैं, जो भी है, पापा लोग टीवी देखते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये सारा काम हो गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बताता है फंक्शनैलिटीज। फंक्शनैलिटीज मतलब वेबसाइट में क्या फंक्शनैलिटीज होंगी। अब वेबसाइट आपने बन गई, फ्लिपकार्ट बन गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स भी डल गए, उनकी स्टाइलिंग हो गई, एचटीएमएल बन गया, सीएसएस हो गया, लेकिन मेन फंक्शन क्या है फ्लिपकार्ट का, टू गिव यू प्रोडक्ट्स। आप ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर लगाकर वो ऑर्डर जब आप पेमेंट कर दो, वो प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाए, ठीक है, यही मेन फंक्शन है। तो ये फंक्शनैलिटी जब ऐड करते हैं कि अगर मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो मेरा जो ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया, मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया कार्ट में। मैंने विश लिस्ट में ऐड किया तो विश लिस्ट में ऐड हो गया। ये जो फंक्शनैलिटी है ये हमारा देता है जावास्क्रिप्ट। इसमें भी हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, फेच एपीआई, एपीआई भी हम डाल सकते हैं कि एपीआई कैसे। अब फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या किसी भी वेबसाइट पे, मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रही हूँ कि सबने फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबने यूज किया है, ठीक है। अभी सेल आई है, बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, या अभी अगर आप लेट देखोगे वीडियो देख रहे हो तो चलते हैं, बिग बिलियन डेज चलते हैं, आपको ही पता है लाखों प्रोडक्ट्स हैं, कैसे अपडेट हो रहे हैं, कैसे हमको दिख रहे हैं, थ्रू एपीआई। ओके, एपीआई एक ऐसी एपीआई होती है जिसके पास डेटा होता है, उसमें वो डेटा फेच करके फ्रंट एंड पे लेकर आता है दैट व्हाट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ओके, कभी एक बार क्वांटिटी ओवर हो जाती है ऑर्डर लगाते लगाते, है ना, वो क्वांटिटी कैसे फेच होती है यूजिंग एपीआई कि कितनी क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट की है अवेलेबल, और कितने ऑर्डर्स लग चुके हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर्स लग चुके हैं, कितने लोगों ने वो चीज ऑर्डर कर दी है, और कितने हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस प्रोडक्ट की, वो सब आता है हमारा एपीआई से, दैट इज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज द ऑल फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू होस्ट आवर प्रोजेक्ट, ऑन द सर्वर। ओके, सो उसके लिए हम यूज करते हैं गिटहब। गिटहब क्या होता है, गिटहब एक हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल आपने बड़े बड़े सास मीन आई मीन सॉफ्टवेयर यूज करे होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, उनके वर्जन निकलते हैं। पहले वर्जन में कुछ बग रहता है, फिर वो सेकंड वर्जन निकालते हैं। अपडेट्स आते हैं हमारी एप्लीकेशन के, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं, तो उनके हर अपडेट के उनका वर्जन चेंज हो रहा है। तो ये कौन मैनेज कर रहा है, ये गिटहब मैनेज कर रहा है। गिटहब को भी हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, व्हाट इज गिटहब एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गिटहब। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टू अ फ्रेमवर्क। वी विल in front end development we are having some frameworks, react, vue, angular, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो। now there is a choice, ये 5 हैं, these two are also frameworks। then we can write css using framework, css के ये frameworks हैं, tailwind है, redux है, bootstrap भी है, ठीक है। तो ये सारे frameworks होते हैं, इनमें से आप कोई भी उठा सकते हो। this is all about front end। now I have a roadmap of backend as well। backend हम इस कोर्स में कंप्लीट कवर नहीं करने वाले, लेकिन इन द कमिंग टाइम आफ्टर दिस सीरीज आई विल कवर बैकएंड आल्सो, आई विल कवर फुल स्टैक, आई विल कवर एवरीथिंग। इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट पता होना चाहिए। बैकएंड में तो मेन काम पूरा बैकएंड का है, पूरा आपको सर्वर संभालना है, तो आपको इंटरनेट के बारे में पता होना ही चाहिए। देन द सेकंड स्टेप इज टू लर्न अ लैंग्वेज। यू हैव टू लर्न एनी लैंग्वेज इन दिस। क्या आपको जावा या सी प्लस प्लस, सी हैश, पीएचपी, रूबी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन हैंडल द बैकएंड पार्ट। देन यू यू हैव टू द गिटहब, तो गिटहब तो हम सीखेंगे ही। नेक्स्ट इज डेटाबेस, टू स्टोर योर डेटा, टू स्टोर द एवरीथिंग you need for the website। so everything covers in the backend। next is operating system। so operating system अगर आप कॉलेज में हो, बीटेक कर रहे हो, या आप कोई भी कंप्यूटर साइंस कोर्स से हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा। बेसिक टर्मिनल कमांड्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स के, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, हाउ आर द मेमोरी कैसे मैनेज होती है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आने चाहिए, तभी आप बैकएंड डेवलपर कहला सकते हो। डेटाबेस में इनमें से कोई भी आप उठा सकते हो, इतने सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज MySQL टू स्टार्ट इन योर करियर इन डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट इज NoSQL डेटाबेस। NoSQL में हमारा MongoDB बहुत पॉपुलर है। MongoDB आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट डेटाबेस आता है हमारा, ये टाइम सीरीज, रियल टाइम, Firebase is also very popular। ये हमारा स्टोर करता है क्लाउड में डेटा। ओके, नेक्स्ट इज एपीआई। सो यू हैव टू लर्न अबाउट एपीआईज इफ यू वांट टू बिकम अ गुड बैकएंड डेवलपर। आप सोचोगे इतना सारा मैम ने बता दिया, कैसे पढ़ेंगे, मेरे को नहीं करना, डेवलपमेंट छोड़ो। द गुड न्यूज इज even if you learn HTML, CSS and JavaScript, then also you can start a job, then you can start applying for job and apply your knowledge in that। for that you need some projects only। so अगर आप बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स ही बनाते हो and you start applying for job or internships during a college, then also you are eligible।
okay, but you have to know all the concepts of these particular things. ये नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया सबका and छोड़ दिया. No, you have to know all of them. The good news of web developer is this. And when you're working in a job on a profile in industry, then you can get experience based on that requirement, industry requirement. हो सकता है वो आपको Node.js कराएं, फिर वो आपको खुद ही सिखाएंगे. So this is the best part of being a web developer. ये आपको कोई नहीं बताएगा. Okay, so that's it in this video. In the next video, we will start HTML, learning HTML. And in what we will having this playlist, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and Git. And many more learnings, many more projects. बहुत सारे projects होंगे, बहुत सारी exercise होंगी, बहुत सारी interactivity होगी. Do let us know your feedback in the comments and what you need to cover in this playlist. Thank you all. Do subscribe our channel to stay motivated, and we are launching everything you guys for free. So please subscribe our channel. It will really motivate me a lot.